Okay, good morning, students. So let's continue the questions based on sum of n terms. सर आपकी वॉइस Sum of n terms of AP. We have already learned the formula. Sn is equal to n by 2 a plus l, or Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. ओके, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. Now let's solve some more questions based on this. Note down the question. The sum of first 9 terms of AP is 0. Sum of first 9 terms of AP is 0. That means it is given S9 is equal to 0. Seventh term is 10. Seventh term दिया हुआ है, मतलब A7 is equal to 10, and you have to find out the sum of first 23 terms. 23 terms का sum find कर. Very simple. Let's frame the equation. S9. So applying the formula, 9 upon 2 2a plus 9 minus 1, that is 8d, is equal to 0. 2 common, 9 by 2 into 2, a plus 4d equal to 0. 2 cancel, 9 transpose to other side, a plus 4d is equal to 0. From here we can get a is equal to minus 4d. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. Now a7 is equal to 10. a7 मतलब यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा. a7 is a plus 6d इक्वल टू 10. a की वैल्यू रखिए यहां पर, माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 10. 2d is equal to 10, therefore d is equal to 5. Now we have to find S23. S23. Apply the formula for Sn. n is equal to 23 लिखिए. a की वैल्यू आपके पास a is equal to minus 4d है. a is equal to minus 4 into 5, that will become minus 20. a और d की वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास. S23 n 23 upon 2 2a 2 into minus 20 plus 23 minus 1 22 into d, that is 5. So it is 23 upon 2 minus 40 plus 110. 23 upon 2 into 70. 7 3s are 21, 7 2s are 14 plus 2 16, 1610 upon 2, so that is 805 is your answer. 805. Okay.
Next question, that is question number 4 of your book NCERT. Question number 4, exercise 5.3 NCERT. How many terms of the AP? 9, 17, 25 ... must be taken to give us sum as 636. Sn is equal to 636 given है क्वेश्चन में. Sn is equal to 636. A की वैल्यू भी गिवन है आपके पास 9. D की वैल्यू हो जाएगी 17 minus 9, that is 8. Now Sn is 636. So let's apply the formula. अब यहाँ पे हम n/2 a plus l वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि l की वैल्यू नहीं मालूम. हम a और d के टर्म्स में जो फॉर्मूला है वही अप्लाई होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में. तो Sn that is n/2 2a plus n minus 1 into d is equal to 636. Here 2 can be taken as common. n/2 into 2, यहाँ बचा 9 प्लस 2 कॉमन निकाल लिया 4 बचेगा यहाँ पे. तो 4 into n 4n, 4 into minus 1 minus 4 equal to 636. 2 cancel. 4n plus 5 into n, 4n square plus 5n minus 636 equal to 0. Now this can be solved by using quadratic formula. तो quadratic formula apply करते हैं यहाँ पे. n is equal to minus b minus 5 plus minus under root b square 5 square minus 4a into 4 c into minus 636 upon 2a 2 into 4. So that comes out to be minus 5 plus minus under root 636 into 16. One 10176 plus 25 whole upon 8 plus 25 10201 minus 5 plus minus under root 10201 whole upon 8. Now square root of 10201 is 101. Okay, 101 होता है. 101 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए. 100 plus 1 whole square. So you'll get 10201. So that is minus 5 plus minus 101 upon 8. Now taking plus sign, n is equal to minus 5 plus 101 upon 8, 96 upon 8
n is 12. Taking negative sign, n is equal to minus 5 minus 101 upon 8 minus 106 upon 8. Not possible, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. सो द आंसर इज n is equal to 12. Okay? Okay, next one more question similar to this one. This is not from NCERT, extra question now. Another question just similar to this one. How many terms of the AP? How many terms of the AP how many terms of the AP minus 7 minus 13 by 2 minus 6 minus 11 by 2 minus 5 dot 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 are needed to get the sum minus 45. To get sum is equal to minus 45. Explain the double answer. Explain the double answer. तो यहाँ पे ये चीज है कि एक्स्ट्रा जुड़ गई है. एक्सप्लेन द डबल आंसर, मतलब दो आंसर्स आएंगे, दोनों सेटिस्फाई करेंगे. तो क्या रीजन हो सकता है ये देखना है हमको. तो सबसे पहले तो हम लेट्स फाइंड आउट n. A is equal to minus 7. D is equal to minus 13 by 2 minus 7. 1 upon 2. Sn is minus 45. Let's apply the formula. N upon 2 2a plus n minus 1 into d equal to minus 45. यहां पे एलसीएम ले लेते हैं. n और ये 2 इधर ट्रांसपोज कर लेंगे. minus 28 plus n minus 1 whole upon 2 equal to minus 90. ये 2 को और इधर ट्रांसपोज कर लो. So we get
और ये ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, n स्क्वायर माइनस 29n प्लस 180 इक्वल टू 0. ओके, n स्क्वायर माइनस 29n प्लस 180 इक्वल टू 0. अब यहां पे आपको 180 के ऐसे फैक्टर्स करना है कि सम 29 आ जाए. So it is 20 plus 9. So we get n square minus 20n minus 9n plus 180 equal to 0. फैक्टराइज करेंगे, कॉमन निकालते हैं तो यू विल गेट n minus 20 n minus 9 is equal to 0. So we are getting two values, n is equal to 9 and n is equal to 20. दो वैल्यूज मिली. अभी हमने कहा था कि n पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज है, मतलब दोनों आंसर सही है. और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे देखिएगा, एक्सप्लेन द डबल आंसर, मतलब ये डबल आंसर क्यों आ रहा है. आप यदि इस सीरीज को देखते हैं, सो दिस सीरीज इज रिड्यूसिंग. ठीक है, रिड्यूसिंग सीरीज है, मतलब जो नेक्स्ट टर्म है वो 1/2 कम हो रहा है, पक्का कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है. इंक्रीजिंग सीरीज है. तो यहाँ पे -7 -6 कौन सा बढ़ा है? -6 बढ़ा है. तो ये इंक्रीज हो रही है, सीरीज इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब -7 से देखो -5 तक आई. आगे आप जाओगे तो इस सीरीज में 0 भी आएगा, फिर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी. तो यहां पर इसका मतलब ये है कि सम ऑफ 9 टर्म्स इज -45 and sum of 20 terms is also -45. और जब दोनों का सम सेम है, इसका मतलब ये है कि आपको जो 10th से लेकर के 20th तक की जो टर्म्स मिलेगी उसका सम क्या है? 0. क्यों? क्योंकि -45 है और टर्म्स ऐड करने के बाद भी -45 आ रहा है, मतलब आपने 0 ऐड किया. और यू कैन टेक इट दिस वे, ये जो यहां से इसको हम ये कह सकते हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग डबल आंसर बिकॉज सम ऑफ 10th term to 20th term is 0. ठीक है, क्लियर? क्योंकि सम 0 होगा तभी सम सेम रहेगा. जब नेक्स्ट जो टर्म से हम ऐड करते जाए, आप देखिएगा हम सीरीज लिख के भी बताते हैं आपको. हियर इट इज -5. नाउ लेट्स सी हियर, यहाँ पे ये आया आपका -7 -13/2. आई एम जस्ट रबिंग आउट द क्वेश्चन बस बेटा. ये देखिए, ये है सीरीज -7 -13/2, फिर आया -6, उसके बाद आ जाएगा -11/2, देन कम्स -5, -5 के बाद आएगा -9/2, देन कम्स -4. ओके, -4 के बाद आएगा -7/2, देन कम्स -3, देन इट इज -5/2, then comes it is -2, -3/2, then comes it is -1, -1/2, then comes 0. उसके बाद आएगा 1/2, फिर 1, फिर 3/2, then 2, and then comes 5/2, then comes 3. We'll write 20 terms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 terms हो गए यहाँ पे.
ठीक है, अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहां तक की टर्म्स का सम -45 है, जो क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था। ओके, जो हमने कैलकुलेट किया n इज इक्वल टू 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 9 up to 9 terms, up to 9 terms, up to here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to this 9 terms. I'll write these two terms here, -5/2 and -2, then comes -3/2. तो यहां तक की टर्म्स का सम ऑलरेडी -45 है, जो हमने लिखा है S9, और यहां से यहां तक की टर्म्स का भी सम -45 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यदि ये वाली टर्म्स को ऐड करोगे, देखो 11 टर्म्स होगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, -2 यहाँ कैंसिल हो गया, -3/2 यहाँ कैंसिल हो गया, -1 1 कैंसिल, -2/2 1/2 कैंसिल, बीच में 0 है, तो इन सब का सम क्या है, 0 है। वही हमने लिखा है सम ऑफ 10th टर्म टू 20th टर्म, 10th term to 20th term is 0, therefore we are getting double answer. Got it? Is it clear? Next question. Now, question number 9 from NCERT. Exercise 5.3. Question number 9. NCERT का ये. Sum of फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49. इसकी केवल इक्वेशन बना के बताएंगे, बाकी आप लोग कर सकते हैं अपने आप. सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49 मींस S7 इक्वल टू 49. सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289. S17 is 289. S7 is 49, that means 7/2 2a plus 6d equal to 49. 2 common from here, 7/2 into 2 a plus 3d equal to 49. 2 cancel, a plus 3d is equal to 7 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ये इक्वेशन बन गई a plus 3d is equal to 7. नेक्स्ट वन 17/2 a plus 16d equal to 289. 2 common, a plus 8d equal to 289. 2 cancel, a plus 8d is equal to 17. 289 divided by 17, that is 17. दो इक्वेशंस बनी. अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें. इक्वेशन 2 minus equation 1. See, in this question what you need to find, you have to find out Sn find करना है. Sn. Equation 2 minus equation 1, 8d minus 3d, 5d equal to 10, d is equal to 2.
अब d की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, a इज इक्वल टू a to the 16, 17 minus 16 is 1. A is 1. Now we have to find out Sn. क्या आप बता सकते हैं? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. देखो AP1 क्या बन रही है. If you remember, AP बनेगी 1, 3, 5, 7, dash dash dash, n terms. Can you tell me the answer directly? n square. n square, absolutely right. हमने पहले डिस्कस किया था सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर. तो ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा है. हम यहाँ पे AP का फॉर्मूला लगा कैलकुलेट करते हैं. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2. Simplifying this, you will get n square. Okay? और वैसे भी देखिए यहाँ पे फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 है. 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर. सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल नंबर्स इज 7 स्क्वायर. सम ऑफ फर्स्ट 17 ऑड नेचुरल नंबर्स इज 17 स्क्वायर. तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स विल बी n स्क्वायर. Next variety of question. Next type of question. A question from NCERT. Show that. Question number 10 है बेटा. Show that A1, A2, A3, AN form an AP whose nth term is given by. I'll solve first part for you. An is equal to 3 plus 4n. दो पार्ट्स है और यहां पे फाइंड करना है आपको. फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स as 15. Okay, let's extend the question also find out Sn. S15 और Sn दोनों फाइंड कर. और इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा ब्रेकअप करें तो यहां पे आपको एक्चुअली फाइंड करना है. सबसे पहले फाइंड फर्स्ट टर्म फाइंड करना है. कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. कॉमन डिफरेंस का मतलब D. उसके बाद आपको S15 और फिर Sn फाइंड. 4 चीजें निकालना है. लेकिन उससे पहले तो यहाँ पे शो दैट बोला बेटा. ये नहीं बोला कि यहाँ पे ये AP है. आपको पहले चेक करना है कि ये AP है या नहीं. So for this very simple one, दो तरीके बताते हैं यहाँ पे AP चेक करने का. सबसे पहला method 1 to check whether it is an AP or not. We'll simply put the values of n and write the series. मतलब आपको यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एटलीस्ट 5 तक रखना और सीरीज लिखना. ठीक है. तो जब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो A1 हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म आ गया आपका 3 plus 4 into 1 that is 7. n की वैल्यू 2 रखिए, A2 आ जाएगा 4 to the 8 plus 3 is 11.
n की वैल्यू 3, a3 आ जाएगा 15, n इज इक्वल टू 4, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, n इज इक्वल टू 5, a5 इज इक्वल टू 23 और आगे डॉट 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 लगा दीजिए, डॉट डॉट डॉट, राइट। नाउ टू चेक दैट इट इज एन AP, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। विल फाइंड आउट A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 minus A4. So we see that 11 minus 7 is 4, 15 minus 11 is 4, 19 minus 15 is 4, 23 minus 19 is 4. As difference of consecutive terms is same, therefore it forms an AP. तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, इट फॉर्म्स एन AP। अब यहां पर आपको फर्स्ट टर्म लिखना है पहले, तो फर्स्ट टर्म हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, 7 है। कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो D हो गया 4, ठीक है। अब आप थर्ड पार्ट पे आइए, S15 n/2 2a plus n minus 1 into D। कैलकुलेट करो बच्चों, 15/2 2a plus 15 minus 1 14 into D 4, 15 upon 2 70 2 35 times 525 is the answer. ओके, तो ये हो गया S15। अब हमको निकालना है SN। जब SN बोला तो n की कोई वैल्यू नहीं रखेंगे बच्चों, n एज इट इज रहेगा हमारा, n के टर्म्स में ही आंसर आएगा। n अपॉन 2 2a 2 into 7 n minus 1 into 4। तो यहां से 2 तो कॉमन निकाल लीजिए, n अपॉन 2 into 2 7 प्लस 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2n minus 2 2 कैंसिल, 2n plus 5 into n, तो 2n square plus 5n is Sn। ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू चेक। अब आपने यदि डायरेक्ट यहाँ पे A लिख दिया, D लिख दिया और ये कर दिया, तो आपके आधे मार्क्स 50% मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर दैट। आधे मार्क्स रिमूव हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि यहां से हाफ क्वेश्चन यू हैव लेफ्ट विद। ओके, अनदर मेथड, दूसरा मेथड देखते हैं। First one is easy rather, but still let's go for second one. Second method है, we are given an is equal to 3 plus 4n। an दिया हुआ है, इससे पहले वाला एक टर्म लिखना है आपको, मतलब n minus 1th टर्म लिखना है, n minus 1। तो यहाँ पे n को रिप्लेस कर देंगे n minus 1 से, तो 3 plus 4 ब्रैकेट में आ गया n minus 1। इसको हम सिंप्लीफाई करें, 3 plus 4n minus 4, so here we get 4n minus 1। अब these are two successive terms, now we'll find out the difference। तो डिफरेंस निकालते हैं, D इज इक्वल टू होता है
an minus 1. This is 3 plus 4n minus 4n minus 1. So when you simplify this, we get 3 plus 4n minus 4n plus 1. Plus 4n minus 4n cancel हो गया. 3 plus 1 4. मतलब difference is 4. This is independent of n. Difference is independent of n. Therefore, given an forms an AP. उसके बाद स्टेप्स यही आएगी. फर्स्ट टर्म निकालना है. डिफरेंस ऑलरेडी आ गया 4 as 15 SN. That part will be same. Okay. Choice is yours. You can solve by any of the two methods. So with the help of this, whatever we have discussed today, you can solve the questions up to question number 14 of exercise 5.3. Exercise 5.3 up to question number 14. 14 क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके